हेलो एवरीवन, दिस इज टीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In this video, we are going to discuss the objective questions of the RTP that has been released by ICAI for upcoming CA final examinations of May 23 attempt. Let us first talk about the study material that will be applicable for our examination, and then we'll go for the questions. Now, for this particular attempt, the institute has not given a new module. So the module that is given is of that was applicable for May November 22, and then they have given a supplementary study paper in which they have prescribed all the amendments which would be applicable for your upcoming examinations. So you have to go through that particular material along with your study supplementary study paper, and then you'll be able to cover all the topics that are relevant for your syllabus. The topic, the assessment year, sorry, which will be relevant for us is that is Finance Act 22, that is assessment year 23-24 would be relevant for us for the upcoming examinations. Let us start with the objective questions. Now, again, before starting any video, I always say this, and whenever institute releases RTP, a lot of part of that is dependent or based on your amendments, because for every attempt the amendments are very very important for the examinations. So again, before starting or before solving the RTP, just go through the amendments, revise the amendments. The RTP of CA final is majorly based on the amendments that have been prescribed in the syllabus. Just go through them once, and then we can start with the solution of the objective parts. Chaliye, so let us start. Case scenario 1. Mr. Hari, aged 42 years, is a resident Indian who is a salaried employee. His salary income for previous year 22-23 is 17 lakh 50,000. Brother is 45 years of age, is a resident Indian. Both are residents, who is having a retail trade business in which he has incurred a loss of 5 lakh 25,000 computed for the previous year 22-23. He also trades in virtual digital assets. The asset details of assets transferred by Mr. Hari, Mr. Rajesh during the previous year 22-23 are given as here under. So again, in this particular case, the topic of VDA, that is taxation of virtual digital assets, which has been introduced for our relevant assessment year, becomes very very important. They have given the transactions of purchase and sale of assets and assets of both the brothers. आगे चले. During the financial year 22-23, Mr. Hari has a dividend income of 10 lakhs from the shares of Indian companies. He has paid interest of 4 lakhs on loan borrowed for investment. Both Hari and Rajesh have deposited 1.5 lakh in the PPF. Hari has interest on SB account 22,000 and Mr. Rajesh has income from FD 50,000. Cost inflation indexes आपको दे रखे हैं. On the basis of the facts given above, choose the most appropriate answers. चलो शुरू करते हैं. 6 questions हैं, 1 2 3 4 5 6. What is the tax treatment of loss from transfer of virtual digital asset by Mr. Hari? Very simple. ये वाला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन काफी इजी दिया है. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की सेल पर जो भी लॉस होता है, देयर इज अ सेपरेट वीडियो व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड ऑन टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट which is applicable for your examination. I'll share the link of that video along with this RTP video so you can go through it. वर्चुअल डिजिटल एसेट को बेचने पर जो भी लॉस होता है उसका कोई सेट ऑफ, कोई एडजस्टमेंट, कोई कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा. So it is simple. The option, which option would we be choosing? See, it is a long-term capital loss which cannot be set off against capital gains. It has to be carried forward. No. It is short-term which can be set off. No. Such loss cannot be set off against any source of income and can be carried forward. नहीं, ना set off होगा ना carry forward होगा. Such loss can neither be set off against any source nor it can be carried forward. Yes, the correct answer is question number 1 का D. What is the income includable in total income of Mr. Rajesh on account of transfer of VDA? तो आप जब इनकम कैलकुलेट करते हो, सेल्स कंसिडरेशन minus only cost of acquisition is allowed to be deducted. No other deduction is allowed when you are calculating the gains from virtual digital asset. So किसके हाथ में निकालनी है अपने को? राजेश के हाथ में. राजेश मतलब ये वाले. तो मिस्टर राजेश का सेल कंसिडरेशन कितना दिया है अपने को देखें. सेल कंसिडरेशन है 3,50,000. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 2,50,000. ट्रांसफर एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 लाख. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी. विल चेक द आंसर्स ऑल्सो. तो साथ के साथ हमें क्रॉस चेक होता जाएगा कि हम कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं. सो सेकंड का आंसर है बी, फर्स्ट का डी था. चलो थर्ड पे आ जाते हैं हम.
Question number 3 is, what is the amount of tax deductible by Mr. Ganesh and Mr. Valish under 194S? That is, when you are transferring the consideration for purchase of virtual digital asset, you have to deduct tax before paying the amount from consideration paid to Mr. Hari and Mr. Rajesh for virtual digital asset. Now, when you are calculating tax deducted at source under 194S, you need to keep in mind that they have given two limits, 50,000 and 10,000 in that case. And depending on the person who is deducting the tax, the limit would be applicable. There is a definition of specified person given in that particular section. If you have read the section, you must be knowing it. कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि या तो बिजनेस ही नहीं कर रहा है या बिजनेस कर रहा है लेकिन उसका टर्नओवर जो हम हमेशा पढ़ते हैं 1,50,00,000 के लिमिट के अंदर है, तो फिर लिमिट होती है 50,000, अदरवाइज 10,000। तो उसके ऊपर अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टैक्स डिडक्ट करना है, और टैक्स डिडक्ट करने का रेट इज 1%। ओके, सो इन दिस केस लेट अस सी क्या हम स्पेसिफाइड पर्सन की केस में आ रहे हैं। खैर वैसे 10 हो चाहे 50 हो, हमारा कंडीशन मतलब लिमिट तो क्रॉस हो ही रहा है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। तो टर्नओवर जो है 90 लाख है, इसका 15 लाख है, ठीक है। और हमें पिछले साल का टर्नओवर देखना है, करंट ईयर का टर्नओवर नहीं देखना है। सो 110 और 22 लाख है। Again, it does not matter because even if we see the limit of 50 or if we see the limit of 10,000, it is more than that. So that the TDS would be applicable. Okay, तो अब TDS किस पे काटना है? 1%। तो यहाँ पर आप डिडक्ट करोगे 4,90,000 का, हाँ 1%, दैट इज 4,900। एंड इधर आप डिडक्ट करोगे 3.5 लाख का 1%, दैट इज 3,500 will be deducted. Let us see. Nil, since both cases turnover does not exceed 100 lakhs. Okay, that is a fact. But even though the turnover does not exceed 100 lakhs, the amount of payment exceeds the specified limit, which is 50,000. So that has to be deducted. 4,900 and nil respectively. नहीं, दोनों को ये वाला 4,900 and 3,500 tax is deductible since the same is in excess of the prescribed threshold limits. Question number 3. Answer is D. Yes, question number 3 answer is D. चलो अब आ जाते हैं question number 4. Again 4 is related to the case scenario 1. What is the income includable in the total income of Mr. Ganesh and Valish on receipt of virtual digital asset? 56,210. If you receive it as a gift, basically without consideration, वही normal provision है। अगर 50,000 के ऊपर वाला केस है तो फिर आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो दोनों के केस में निकाल लेते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है फेयर मार्केट वैल्यू का और एक्चुअल कंसिडरेशन का। गणेश ने फेयर मार्केट वैल्यू थी 5,10,000 और गणेश ने खरीदा है 4,90,000 में, तो डिफरेंस इज ऑफ 20,000 ओनली, नॉट टैक्सेबल। 50,000 की लिमिट है हमारे पास 56,210 में। इधर डिफरेंस है 3,50,000 और इधर है 4,10,000, दैट इज 60,000। सो दिस विल बी टैक्सेबल। मतलब कौन होगा ये? वलिश के हाथ में टैक्सेबल है, गणेश के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। nil and 60,000 respectively. That is question number 4 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 4 का आंसर है डी, करेक्ट। चलिए 5th पर आ जाते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, क्वाइट इजी टू गो। What is the total income of Mr. Hari for assessment year 23-24? Assume that he has not opted for BAC. Okay, so total income में सैलरी तो उन्होंने गिवन ही दे रखी है अपने को, है ना, कि सैलरी इनकम कितनी है। What was the salary income given in the question? Easy है, again that is simple. 17,50,000 is the salaried income. Then we'll just make a small computation of total income. कैपिटल गेन यहाँ पर पहले देख लेते हैं, लैंड का क्या सीन है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इंडेक्सेशन लगेगा कि नहीं वो चेक कर लेना। CII हो भी सकता है कंफ्यूज करने के लिए दिया है तो लगेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द डेट ऑफ परचेज? 1/4/2020। डेट ऑफ सेल लैंड के केस में, सॉरी लैंड के केस में 1/4/2021 एंड 28 फरवरी को बेचा है हमने, तो 24 महीना हो गया क्या? नहीं। सो ये शॉर्ट टर्म हो गया, तो अगेन नो इंडेक्सेशन इज अलाउड। सेल्स कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 30 लाख में से 1 लाख का ट्रांसफर एक्सपेंस हटेगा। लैंड में सेल्स कंसिडरेशन माइनस 1 lakh ट्रांसफर एक्सपेंसेस। अगेन इट इज वेरी सिंपल, सो दिस इज योर नेट सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सो 9 lakh इज द
कैपिटल गेन इन केस ऑफ वीडीए इसको लॉस हो रहा था, है ना, तो वीडीए में तो लॉस है, अगेन दैट लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड और सेट ऑफ विद एनी अदर इनकम। एसबी इंटरेस्ट था और डिविडेंड इनकम भी थी, है ना, अदर सोर्सेस में। एसबी इंटरेस्ट तो 22,000 का था जितना मुझे ध्यान आ रहा है, विल क्रॉस चेक द फिगर्स वंस, but as far as I remember, the SB interest was of 22,000. Dividend income is 10 lakhs and the interest was 4 lakhs. Now there is a condition in section 57, that is deductions from income under the head other sources, that if you have any income from dividend and if you are paying any interest to earn that dividend, then maximum 20% of such income तक आप डिडक्शन ले सकते हो। तो भले ही आपने 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया है, बट जितनी आपकी इनकम है उसका मैक्सिमम 20% आपको डिडक्शन मिलेगा, दैट इज 2 lakhs। सो 8 lakhs विल बिकम टैक्सेबल इन दिस केस, है ना। चलो निकाल लेते हैं। जीटीआई 17,50,000 प्लस 9 लाख का कैपिटल गेन प्लस 22,000 का एसबी इंटरेस्ट और 8 लाख का डिविडेंड इनकम इज 34,72,000 लेस डिडक्शन। तो पीपीएफ में डाला है इन्होंने 1,50,000, नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी बोला है ना, हाँ। और एसबी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा टीटीए का 10,000, है ना। और कोई डिडक्शन तो हाउस लोन वगैरह का तो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आई डोंट थिंक एनी अदर डिडक्शन इज अलाउएबल। सो द इनकम विल बी 33,12,000। देखिए हम हमारी इनकम 33,12,000। अगेन लेट अस चेक द ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का डी। हाँ, excuse me. Now, six. The last question of this case scenario, question number 6. What would be the tax payable by Mr. Rajesh? Rajesh मतलब दूसरा वाला भाई. For AY 23-24, what is the amount of business loss, if any, to be carried forward to AY 24-25, assuming that he has not opted for Section 15 BSc? Okay, तो अब इसकी सैलरी वैलरी तो थी नहीं, बिजनेस में लॉस था, है ना, कुछ कितना लॉस है, 5,25,000 का बिजनेस में लॉस हुआ है हरीश को। लेकिन अगेन बिजनेस लॉस आपके वीडीए की इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता, तो पीजीबीपी में लॉस है पहले तो 5,25,000। कैपिटल गेन में मतलब आपका ये वीडीए का इनकम है, लेकिन इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो कि 1 लाख का इनकम निकाला था अपन ने, है ना, और इस पे फ्लैट 30% से आपको टैक्स भी देना है, ठीक है, उस पे बाद में आएंगे टैक्स पे। फिर अदर सोर्सेज में इसमें एफडी इंटरेस्ट था 60,000 था, आई थिंक, एक सेकंड अपन ऊपर चेक करते हैं। एफडी इंटरेस्ट 60,000, 50,000 सॉरी, 50,000, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। बाकी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, दैट इज 4,75,000 का जो लॉस है वो आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आगे। अब बात करते हैं कि 1 लाख के अमाउंट की, तो 1 लाख का 30% इज टू बी टैक्सेबल, प्लस इस पर लगेगा सेस, तो इंटू 30% दैट इज 30,000 प्लस सेस जोड़ देते हैं 31,200, और इस पे टीडीएस लगा था, है ना। सेल्स कंसिडरेशन कितना है इसमें, राजेश की केस में सेल्स कंसिडरेशन 3.5 लाख है ना, हाँ, तो 3.5 लाख मतलब 3,500 रुपए का हमने क्या दिया है, हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है 3,500 का, तो 31,200 माइनस 3,500 दैट इज 27,700 का हमको टैक्स जेब से देना पड़ेगा, और लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 4,75,000 का। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। ओके, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द केस सिनेरियो 1, क्वाइट सिंपल, not much tricky. More or less, the whole calculation was based on the taxability of VDA. Again, a very major amendment that is applicable for your exams. Second case scenario is based on trusts. Again, a very favorite topic for the government as well, to make a lot of amendments in every year, and also for institute to ask a lot of questions. So trust एक ऐसा टॉपिक है जिसपे पिछले 3-4 साल से हर बार कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आ ही रहे हैं, मेजर अमेंडमेंट्स आ रहे हैं which actually change the whole computation of income of trusts, and plus इंस्टीट्यूट भी बड़ा प्यार करता है इस चैप्टर से, तो इस पे क्वेश्चंस पूछते ही हैं, so it becomes of utmost importance for us to pay attention to this particular chapter. So again, most of the questions of trusts are based on the amendments that have been brought in by the Finance Act 22.
Let us discuss. Helpage is a charitable trust registered under 12AB with its main object falling under the residuary clause any other object of general public utility. Now you know यहाँ पर हमारा एक जो कंडीशन एप्लीकेबल होगा वो क्या होगा, 20% ऑफ टोटल रिसिट्स वाला है ना। अगर जितना भी आपका रिसिट्स है उसके 20% से ज्यादा अगर आपकी कमर्शियल रिसिट्स हो जाती है तो आपके जो कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 इट रिसीव्ड 80 lakhs as voluntary contribution. Trust also borrowed 40 lakhs from Indian Bank to purchase land and from where it can carry out its functions. The trust repaid principal of 10 lakhs. Trust incurred revenue expenditure of 17 lakh and capital expenditure of 60 lakhs towards purchase of land for construction of office building. Out of the revenue expenditure, 17 lakh, 15 lakh was actually paid. Now, this is an amendment in the particular year, and this amendment is brought in retrospectively with respect to AY 22-23. मतलब उन्होंने बोला है कि 22-23 AY से आपको एप्लीकेशन तभी मिलेगा जब आप उसको एक्चुअली पे करा होगा आपने। अगर आपने उसको एक्चुअली पे नहीं किया है तो आप उसको जिस साल पे करोगे आपको उसी साल एप्लीकेशन डिडक्शन मिलेगा। अक्रूवल बेसिस पर आप एप्लीकेशन को डिडक्ट नहीं कर सकते हो। इन केस ऑफ ट्रस्ट दिस हैज बीन प्रोवाइडेड नाउ। सो दिस वाज ब्रॉट इन बाय फाइनेंस एक्ट 22 बट इट इज एप्लीकेबल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन द सेंस प्रीवियस ईयर 21-22 से ही ये अप्लाई हो जाएगा। जिस साल हमारा बजट आया था उसी साल से उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया था। तो इस साल 17 लाख में से 15 ही खर्च हुए हैं, एक्चुअली पे हुए हैं, तो सिर्फ 15 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर पिछले साल का कोई पेमेंट बाकी है तो क्योंकि पिछले साल से ही अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गया, पिछले साल हमारा जो अमाउंट है वो अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं हुआ था, तो जो बचा हुआ अमाउंट हमने इस साल पे किया है वो इस साल हमें अलाउ होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब से उन्होंने ऐसे कर दिया है कि एप्लीकेशन विल बी डिडक्टेड ओनली ऑन कैश बेसिस irrespective of the previous year for which it relates to. Okay, out of the remaining 2 lakh, 1 lakh was paid in April and 1 lakh was paid in January. Again, this is not like 43B. कंफ्यूज नहीं होना है। पीजीबीपी में जो हम 43B पढ़ते हैं उसमें वो लोग बोलते हैं कि आपने भले ही मार्च तक पे नहीं किया है लेकिन अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक पे कर दिया है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर वो वाला लॉजिक नहीं है। तो मार्च के बाद फिर आपने अप्रैल में पे किया, जून में पे किया, दिसंबर में पे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 2 लाख है या अगले साल मतलब जिस भी साल पे करोगे उस साल आपको छूट मिल जाएगी। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 ट्रस्ट पेड 3 lakhs towards revenue expenditure incurred during the year previous year 21-22 and 1 lakh for incurred in 2021. तो 2021 में तो प्रोविजन ही नहीं था तो मतलब हमने अक्रूवल बेसिस पे ले लिया होगा। इस 1 लाख का अभी हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये जो 3 लाख है इसका हम इस ईयर में बेनिफिट ले सकते हैं। ट्रस्ट ऑल्सो रिसीव्ड 30 lakhs बाय वे ऑफ कॉर्पस। कॉर्पस के एग्जेम्पशन के लिए क्या करना होता है, हमें उन्हें इन्वेस्ट करना होता है। तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस सेविंग में 25 लाख तो इन्वेस्ट कर दिए, बाकी के 5 नहीं कर पाए। ट्रस्ट withdrew 5 lakhs from the post office and applied it during the purchase for land. ठीक है, तो 5 लाख हमने यहां से यूज करे हैं। तो टोटल हमने लैंड खरीदने में 60 लाख लगाए जिसमें से 40 लाख लोन से लिया है और 5 लाख यहाँ से लिया है। मतलब हमने एक्चुअली कितना खर्च किया है लैंड के लिए, 15 लाख। ठीक है, trust has donated to EduAid, another trust registered with the main objective of providing education to poor, 12 lakhs out of its current year income. ठीक है, trust has applied 2 lakhs out of its current year income for the medical treatment of brother of trustee. Again यहाँ पर भी एक नया सेक्शन ऐड हुआ है 115BBI कि अगर आप जो हमारे स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, मतलब कि हमने हमारे ऑथर के फेवर में या हमारे ऑथर के रिलेटिव के फेवर में अगर ट्रस्ट का पैसा यूज किया है तो उसके ऊपर हाई टैक्स से रेट लगाया टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, चलो एक एक करके आते हैं, देखते क्वेश्चंस किस किस पर है। बट अगेन 2 मेजर अमेंडमेंट्स आई हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ केस सिनेरियो इटसेल्फ। On the basis of the facts given above, choose the most appropriate answer. 7, 8, 9, 10, 11 अगेन 5 क्वेश्चन हैं। क्या दिया है देखें, what would be the application of the trust during previous year 12-13 excluding unconditional accumulation. ठीक है, assuming that it has fulfilled all the relevant conditions. चलो सबसे पहले तो हमने जो शुरुआत में लिखा था हमारे पास लैंड में हम बोरोइंग 40 लाख की करी है जिसमें से 10 हमने रीपे किया है, ये हमारा एप्लीकेशन है ना। फिर हमने 17 लाख का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जिसमें से 15 इस साल पे हुआ है तो सिर्फ 15 का डिडक्शन मिलेगा।
लैंड के लिए हमने कैपिटल 60 लाख का खर्च किया, जिसमें से 40 लाख का लोन था, 5 लाख हमने पोस्ट ऑफिस से लिए हैं, तो 15 का हमने एक्चुअल खर्च किया है। प्लस पिछले सालों का हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जो अनपेड था, जो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, वो हमारा अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड। क्योंकि अगेन एज आई टोल्ड यू, दिस अमेंडमेंट हैज बीन ब्रॉट इन विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो लास्ट ईयर भी आपको उस पैसे का डिडक्शन नहीं मिला होगा जो कि एक्चुअली पे नहीं हुआ है। तो 3 लाख का डिडक्शन पिछले साल नहीं मिला है। अगेन कीप इन माइंड, अक्रूवल और कैश दोनों बेसिस पे डिडक्शन नहीं ले सकते हो। अगर पहले ले चुके हो तो उसको आप कंसिडर नहीं करोगे, इसीलिए हमने 2021 को कंसिडर नहीं किया है। 10 + 15 + 15 + 3 और कुछ छूट रहा है क्या? ये 12 लाख हमने जो सामने वाले, अज्यूमिंग दैट वो हम सामने वाले की कॉर्पस में नहीं दे रहे हैं, लेट अस अज्यूम दिस because the question is silent, and 15, so the total application will become 55 lakhs। चेक कर लेते हैं। सेवेंथ का आंसर इज बी। ज्यादा नीचे आ गई मैं। हम्म, सेवेंथ का बी। चलो एट्थ पे चलते हैं। अगेन ट्रस्ट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ट्रस्ट डज नॉट गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, अगेन दिस इज अ न्यू प्रोविजन। ये सब आपको सप्लीमेंट्री स्टडी पेपर में मिल जाएगा। उन्होंने ट्रस्ट का एक तरीके से चैप्टर ही पूरा वापस दे दिया है सप्लीमेंट्री स्टडी पेपर में, कि क्योंकि इतने ज्यादा चेंजेस हुए हैं कि अलग से अमेंडमेंट और वो सब देने के बजाय दे हैव प्रिफर्ड कि हम एक अलग से वही दे दें, अमेंडमेंट की जगह पूरा चैप्टर ही एक तरीके से दे दें। तो वहां पर फिर से आपको ये भी चीज मिल जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है जिसमें अमेंडमेंट आए हैं। Now, what will happen if you do not get your books audited? The main thing is that your expenditure would not be allowed. So, what they have said, both capital expenditure and the amount donated to EduAid would not be allowed as deduction. ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगा अगर आपने ऑडिट नहीं कराया तो। What is the amount of income which will be chargeable to tax under 115 BBI? Again, 115 BBI is a new section that has been given in the supplementary study paper. आप देखोगे तो उसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 115 बीबीआई में टैक्सेबल होते हैं। जो मेन हमारे केस के लिए रेलेवेंट है उसमें दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट तो ऑथर, जो मैंने बताया कि ऑथर के ब्रदर के लिए, ट्रस्टी के ब्रदर के लिए आपने एक्सपेंडिचर किया है 2 लाख का, वो प्लस अगर कॉर्पस में आपको कोई पैसा वो किया है, मतलब अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है and then that has not been utilized, that has not been, sorry, you have received some corpus and then if it is not deposited in the specified modes under section 11(5), then also that will be chargeable under section 115 BBI. So total income that will be chargeable under section 115 BBI would be 7 lakh। ठीक है, तो इस पे आपको पूरा 115 BBI के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। Again, this is a new section, penalty leviable. What is the quantum of penalty which can be levied under section 271 AAE? Assume that specified violation has occurred only during the previous year. Specified violation definition is again given in the supplementary study paper as an amendment. This is a new concept, specified violation. और specified violation में उन्होंने इस चीज को consider किया है कि अगर आप अपने मतलब ट्रस्टी के भाई या मतलब relative of that the persons who are that is given in section 13 basically list, अगर उनके फेवर के लिए कुछ काम करते हो तो फिर वो स्पेसिफाइड वायलेशन में आएगा। और 100% की पेनल्टी है अगर वो वायलेशन पहली बार हुआ है तो, अदरवाइज 200% की पेनल्टी है। वो आप पढ़ोगे सप्लीमेंट्री में, आपको मिल जाएगा। सो इन दिस केस एज द penalty as the violation is first time once during the year, basically it is once during the year, then it is 100% पेनल्टी। तो 2 लाख का पूरा 2 लाख आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट एमसीक्यू, assume for the purpose of this MCQ that the trust has receipts of 22 लाख from trade and commerce, और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। व्हाट इज द टैक्स कॉन्सिक्वेंस? तो हमें चेक करना पड़ेगा 20% के अंदर है क्या। अगर हाँ, सॉरी, अगर हाँ तो कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा। अगर 20% से ज्यादा है कमर्शियल रिसिप्ट तो हमारे ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आएगा। तो लेट अस सी क्या है हमारे केस में। 22 लैक्स का है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है 80 लैक्स का और कॉर्पस भी मिला है
दोनों के अकॉर्डिंग लेट अस कैलकुलेट. सो वी आर नॉट एक्सीडिंग द 20%. Neither the registration would be cancelled nor the exemption would be denied because आपने violate नहीं करी है condition. तो क्वेश्चन नंबर 11 का देख लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 11 का अगेन द आंसर इज डी. ओके, सी और ए था ना, 9th और 10th का. 9th का सी, 10th का ए. ठीक है. Okay, so all these are the case scenarios given for trust. Again, the case scenarios they have given for final is quite short in this case, I guess. बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने काफी स्पेसिफिक प्रोविजंस को टारगेट किया है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप बता पाओगे, अदरवाइज आपको नहीं आएगा. एंड अगेन द टारगेट इज मोस्टली ऑन द अमेंडेड पोर्शन. Make sure you read the trust provisions very very well before the exams because normally trust पे question आता ही है पिछले हर attempt से. Even since old scheme, old syllabus, trust was something which was always asked as a 10 or 12 marks questions in the exams. न्यू सिलेबस में आने के बाद भी उन्होंने 10-12 मार्क्स रखे हैं हमेशा ट्रस्ट के लिए. एग्जिट टैक्स से पूछते हैं या फिर वो आपका नॉर्मल ट्रस्ट का कंप्यूटेशन पूछते हैं आपसे. तो बिल्कुल आप ट्रस्ट, और इस बार तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज उसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं. तो जो सप्लीमेंट्री स्टडी पेपर में आपको ट्रस्ट का पूरा पोर्शन दिया है उसे जरूर रेफर करके जाएं. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. Mr. Adesh, a resident Indian, purchased an apartment in Ashiana Gardens, a gated housing complex from Messrs. Ashiana Constructions, an Indian company, for 48 lakhs. In addition, he paid 1 lakh for club membership fees and 1 lakh for car parking fee. The stamp duty value of the apartment on the date of transfer was 49 lakh 80,000. Is Mr. Adesh liable to deduct tax at source in respect of transaction? If so, how much? Again, there is an amendment in the section 194IA. यहाँ पर आपको पहले ये बोला जाता था कि 50 लाख तक या उससे ज्यादा का अगर कंसिडरेशन है तो आपको टैक्स डिडक्ट करना रहेगा इफ द कंसिडरेशन इज एग्जैक्ट 50 lakhs और मोर देन 50 lakhs. लेकिन अगर हम याद करें तो जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं, मतलब लैंड बिल्डिंग सेल करते हैं, तो हमारे जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं टैक्सेबिलिटी के, दैट इज 50C, 56(2)(10), है ना, 43CA, ये सब आपको सेल्स कंसिडरेशन के साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बारे में भी बात करते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल्स कंसिडरेशन विच एवर इज हायर के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है वगैरह वगैरह. लेकिन जो टीडीएस का सेक्शन था वो सिर्फ सेल्स कंसिडरेशन पे ही बेस्ड था अभी तक. तो उन्होंने 194IA में अमेंडमेंट किया है. उन्होंने बोला है कि भैया यहाँ पे भी एसडीवी चेक करनी है, बाकी यहाँ पे 10% वाली चीज लगाना अभी नहीं डाली है उन्होंने. सो बेसिकली यू हैव टू कंपेयर एसडीवी और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. दोनों में से अगर कोई एक भी 50 लाख या उससे पार है तो देन यू हैव टू डिडक्ट टैक्स ऑन दैट अमाउंट. ओके, चलिए. सो अब मिस्टर आदेश, अ रेसिडेंट इंडियन, परचेज्ड एन अमाउंट. ठीक है, इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, एक सेकंड, हाँ, 49,80,000 और 48 lakhs आपने खरीदा है प्लस 1 लाख का मेंबरशिप फीस और 1 लाख का पार्किंग फीस. तो 50 लाख का आपने टोटल कंसिडरेशन हुआ है आपका. और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 49,80,000 की है. तो क्योंकि एग्जैक्ट 50 lakhs, whenever I teach TDS, I always tell this point that पे अटेंशन टू द लिमिट्स ऑफ टीडीएस. बिकॉज हम लोग ऐसे तो याद रख लेते हैं कि 50 लाख के ऊपर, 10,000 के ऊपर है तो टीडीएस काटना है, 2 लाख के ऊपर है तो टीडीएस काटना है. लेकिन एग्जैक्ट 2 लाख है, एग्जैक्ट 50 लाख है तो क्या होगा? और मैं हमेशा बताती हूँ ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट काम होता है, जहां पर बच्चा उलझे उससे वहां उलझाना. तो बेसिकली एग्जैक्ट 50 lakhs पर भी टैक्स रिडक्शन का एप्लीकेबिलिटी रहेगा. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. Because the figure which is higher is exact 50 lakhs, tax has to be deducted at the rate of 1% as per 194IA. तो 50 लाख का हम निकाल लेते हैं 1%, 50,000. So 12th का आंसर है हमारा D, that yes, tax is to be deducted at the rate 1% of 50 lakhs. So 12th का आंसर चेक कर लेते हैं अपन. 12th का आंसर is again D. Okay, now 13, 14 and 15, last 3 objectives remaining. Let us discuss them. Question number 13. आंसर 12th का टिक कर देते हैं अपन. Okay, so Mr. Adesh is
liable to deduct tax at the rate of 1%. Now next, A Limited is a pharmaceutical company in which public are substantially interested. It issued bonus shares to all its shareholders. Company gives free samples. Again, this is an amendment 194R, in which you need to deduct tax on perquisites. फ्री सैंपल्स ऑफ मेडिसिन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. दो चीजें हुई हैं. ए लिमिटेड ने क्या किया है, एक तो बोनस शेयर्स इशू करे हैं शेयर होल्डर्स को, और दूसरा अपन ने क्या किया है, सेकेंड थिंग दैट इज डन इज, लिख लेते हैं अपन, बोनस दिया है एंड फ्री सैंपल्स ऑफ मेडिसिन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. ओके, नेक्स्ट इज बी. बी लिमिटेड ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफर सेल्स डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर्स. डिस्काउंट दिया है कस्टमर्स को, ठीक है. और दूसरा किया है फ्री एयर टिकट्स टू बैंकॉक टू इट्स डीलर्स ऑन अचीविंग सेल्स टारगेट्स. फ्री टिकट्स, ठीक है. दोनों में से हमें देखना है 194R किस पे लगेगा. Are A and B Limited required to deduct tax under 194R? If so, in respect of which transactions? Assume that all transactions took place on or after 1st of July, because again this section is applicable in between the year 1st of July 2022, and the value of such transactions with each resident exceeds the prescribed threshold limit. ठीक है, तो मतलब बाकी सारी कंडीशंस है, आपको सिर्फ चेक करना है कि ये ट्रांजैक्शंस 194R में क्लासिफाई होते हैं या नहीं. ठीक है, तो अब देखो बोनस पे तो नहीं लगेगा, फ्री सैंपल्स पे लगेगा, और बी के लिए भी डिस्काउंट पे नहीं लगेगा, फ्री टिकट्स पे लगेगा. अगेन आई हैव गिवन अ स्पेसिफिक वीडियो ऑफ 194R in which I have explained the whole section plus the circulars, because there were some FAQs there were some questions which were coming in the mind of assessees. Whenever there is a new section introduced, there is a lot of confusion amongst the assessees. So they have addressed all the questions and given the answers, जिसमें ये सब दिया है कि कब आपको, जैसे डिस्काउंट है तो उस पे TDS डिडक्ट होगा नहीं होगा. All these things they have given. So you can again refer to that video before if you want to just revise that topic, or you can read it from your book, anything that suits you. सो ए को भी फर्स्ट वाले पे नहीं काटना है, सेकंड वाले पे काटना है. बी को भी सेम. तो इट इज बिन नहीं, ठीक है, ये तो गलत हो गया. रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बट नॉट ऑन बोनस. फर्स्ट पार्ट तो सही है. बी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन सेल्स, नहीं है, गलत हो गया. ए इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स बट नॉट ऑन बी प्रोविजन ऑफ फेयर टिकट्स बट नॉट. सी द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज 13th का आंसर इज सी. 14th, Akash filed his original return of income under 139(1) for assessment year 22-23 and 23-24 on 31st of July and 31st of July 2023 respectively. He however filed an updated return under 139(8)(a) for AY 22-23 on 31st of October 2023. What is the time limit for completion of assessment under 143(3) इन रिस्पेक्ट ऑफ AY 22-23 and 23-24? क्योंकि हमने अपडेटेड रिटर्न भी फाइल किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वुड बी द टाइम लिमिट? सो the time limit that will be applicable for completion of assessment would be 31st of December in both the cases. Okay, 31st of December 2024. चलिए, Mr. Ram, a resident individual aged 40 years, has total income of 4 करोड़ 15 लाख. ऐसा ही इन्होंने इंटर में भी दिया है इस बार. सरचार्ज में पूरा कैलकुलेशन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इंटर के आरटीपी के ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे हैं. इफ यू वांट यू कैन आल्सो प्रैक्टिस देम एज वेल फॉर योर प्रैक्टिस, बिकॉज सिलेबस तो कॉमन ही होता है. For AY 23-24, which comprises of salary of 1 करोड़ 80 लाख, long term capital gain under 112 60 लाख, long term capital gain of 45 lakh under 112A, and short term capital gain of 1 करोड़ under 111A, dividend income of 10 lakhs and interest of 20 lakh. What would be the tax liability for AY 23-24, assuming it does not opt for 15BAC? Now, one very important point to be kept in mind, as I am always saying this from the very start of the video, that amendments are very important. सरचार्ज में एक अमेंडमेंट आया है. अभी तक हम लोगों का ये केस होता था कि 111A, 112A और डिविडेंड इनकम पर मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कैन बी ओनली 15%. अब से उन्होंने इसमें 112 भी ऐड कर दिया है. मतलब इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप बाकी के इनकम पर कितना रेट लगा रहे हो, 25 लगा रहे हो, 37 लगा रहे हो, आपको इन इनकम्स पर
कंपल्सरीली मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितना रहेगा, 15। तो ये जो इनकम है इसका जितना भी टैक्स बनेगा उस पर आपको 15% से ही सरचार्ज लगाना है। अब सरचार्ज लगाना कैसे है, ये कैसे क्लिक हुआ, तो जैसे ही बड़े बड़े फिगर दिखे 50 लाख पार, 1 करोड़ पार, 2 करोड़ पार, यहाँ तो भैया 4 करोड़ पार है, तो ऑब्वियसली आप सरचार्ज के केस में आ चुके हो। ठीक है, चलिए सो पहले तो हम नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सरचार्ज पे चलेंगे। क्या बोला है इन्होंने, 115 बीएसई ऑप्ट नहीं किया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमारी इनकम कितनी है, इनकम है हमारी 4 करोड़ 15 लाख, आउट ऑफ विच स्पेशल रेट टैक्सेशन में कौन सी आ जाएगी, स्पेशल रेट टैक्सेशन में 111A है, 112 है और 112A है ना, और यहाँ पर है बैलेंस। डिविडेंड इनकम स्पेशल रेट टैक्सेशन में नहीं आएगा। 111A, हाउ मच इज द अमाउंट, 1 करोड़ is 111A, 112 60 lakhs, 112A 45 lakhs, और बाकी पूरा इधर आ जाएगा। मतलब हमारी सैलरी 1 करोड़ 80 लाख प्लस हमारी डिविडेंड इनकम 10 लाख प्लस हमारी इंटरेस्ट इनकम 20 लाख, दैट इज 2 करोड़ 10 लाख विल बी टैक्स्ड एज पर द रेगुलर स्लैब रेट्स। ओके, और वो भी रेगुलर वाले, बीएसई ऑप्ट नहीं किया है। ठीक है, चलो अब ये 1 करोड़ पे कितना टैक्स आएगा, 15% है ना, सो 1 करोड़ का 15% इज 15 lakhs, 112 20%, तो 60 लाख का 20% इज 12 लाख, 112A 10% अबव 1 लाख, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 1 लाख के ऊपर मतलब 44 lakhs पर हमें लगेगा 10%, दैट इज 4,40,000। और बैलेंस पर स्लैब, स्लैब मतलब कौन सी, 0 से लेके 2.5 लाख तक नील, देन 2.5 से 5, एज कितनी दी है, आई गेस सीनियर सिटीजन नहीं है, हाँ 40, 5%, 5 से 10 20%, एंड मोर देन 10 lakhs 30%। स्लैब रेट से टैक्स निकाल लेते हैं, 2 करोड़ 10 लाख, 10 लाख को हटाओ, बैलेंस 30%, 112,500, दैट इज 611,2500। सो हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा ये, प्लस 4,40,000 प्लस 12 लाख प्लस 15 लाख, दैट इज 92,52,500 is the tax which this person has to pay if he earns rupees 4 crore 15 lakh rupees. ओके, 92 lakhs का टैक्स है अभी तो, सिर्फ अभी तो सरचार्ज भी जोड़ना है। अब सर सरचार्ज की कहानी समझते हैं। तो फॉर सरचार्ज यू अगेन नीड टू बाइफरगेट, जो हमारा कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम का टैक्स है उस पर हम सिर्फ 15% से सरचार्ज लगा सकते हैं। बैलेंस आपकी जो बची हुई इनकम है वो जिस स्लैब में जा रही है, 15, 25, 37, डिपेंडिंग ऑन दैट स्लैब आपको उस पर सरचार्ज लगाना है। तो पहले तो अपन इनकम को बाइफरगेट कर देते हैं कि कौन सी इनकम के टैक्स पर 15% लगेगा। तो सबको जोड़ देती हूँ मैं, 1 करोड़, दिस आई एम डूइंग जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग, प्लस 60 lakhs प्लस 45 lakhs और 10 लाख का डिविडेंड है ना जो इसमें जुड़ा हुआ है, 10 लाख का डिविडेंड, मतलब जो हमारी टोटल इनकम है उसमें से 2 करोड़ 15 लाख की इनकम पर हमारा जो भी टैक्स होगा इस पर हमारा सरचार्ज का रेट 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब बैलेंस इनकम देख लेते हैं कितनी बची। बैलेंस इनकम बच गई 2 करोड़। अगर ये इनकम 2 करोड़ 80 लाख होती फॉर एग्जाम्पल, तो आप कौन से स्लैब में चले जाते, मोर देन 2 करोड़ लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़, मतलब इस अमाउंट पर लगता 25% का सरचार्ज और इस पर लगता 15% का सरचार्ज। ऐसा क्वेश्चन उन्होंने इंटर के आरटीपी में डाला है, ठीक है, जिसमें पार्ट ऑफ टैक्स पर अलग रेट से सरचार्ज लग रहा है, पार्ट ऑफ टैक्स पर अलग रेट से, लेकिन इन आर केस द इनकम दैट इज रिमेनिंग इज एग्जैक्टली 2 करोड़।
मतलब हम कौन से वाले स्लैब में आ गए, मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़, तो हमारी इस इनकम पे भी कौन सा स्लैब एप्लीकेबल हो गया, 15%। तो फायदा हो गया, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पूरे पर आप क्या लगा सकते हो, 15। लेकिन आपको चेक जरूर करना पड़ेगा एक बार, है ना। अगर ये सपोज 2 करोड़ 80 लाख होता, 70 लाख होता, 2 करोड़ से ऊपर होता बेसिकली, तो फिर आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता। तो अब क्या करते, जो सारा टैक्स 111A 112A 112 और डिविडेंड इनकम पे है, उतने टैक्स पे 15% का सरचार्ज लगता, और बैलेंस इनकम पे, मतलब ये जो अमाउंट होता, इसके दो बाइफरकेशन हो जाते फिर, है ना। डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स है वो अलग हो जाता, बैलेंस इनकम पे जो टैक्स है वो अलग हो जाता, और दोनों पे अलग अलग सरचार्ज लगता। पर हमें ये सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सरचार्ज सीधे सीधे जुड़ जाएगा 15% से। तो 92 52 500 का 15%, दैट इज 1387,875। और इस पर जोड़ेंगे सेस @4%, 425,615। तो हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है 110,65990। दैट इज 1,10,65,990 is the amount of tax that he is going to pay to the government. Good. चलो 15th का C. Let us check if it is correct. Yes, 15th का C. बाकी के सारे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 12 13 14 का क्या था, D, C और B। 12 13 14 का 12 का D, देन C एंड देन B। यस, चलो ठीक है। एंड इसका है C, दैट इज 110,65900 will be the correct answer. So this is how you will calculate the tax, surcharge, cess, everything if the income is comprising of different categories of income, that is salary, capital gain, etc., special rate and general rate income, and all those things. So with this we complete the discussion on the objective questions of taxation of CA final, that is applicable for May 23 attempt. If you have any kinds of doubts, feel free to discuss, solve them once, try to solve them on your own. अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप वीडियो देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप पहले खुद से सॉल्व करके देखें। एंड एज वी कैन सी, ऑल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अमेंडमेंट, सो पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू ऑल द अमेंडमेंट्स। इफ यू हैव एनी इश्यूज अपार्ट फ्रॉम दिस आरटीपी, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको कहीं कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है प्रेजेंटेशन रिलेटेड, if there are any issues, I have also shared a video on presentation of answers, so that can also be checked. I'll share the link along with this video. If you have any issues, feel free to discuss. Prepare very well, do well. All the very best for your examinations.